Hi friends, welcome to EduTap. In this video, we shall be discussing about the perfect strategy for accounting, auditing and insurance for your upcoming exam, EPFO, APFC and EO exam. Right, so I hope you all are aware that notification for EPFO, APFC as well as EO exam has been released. Total of 577 vacancies have been released. So many of you would be preparing. So this video is going to be a good video for your preparation. It can help you define a proper strategy for this subject, accounting, auditing and insurance, which 90% of the people would be finding it tough to prepare. But before that, before I get into the strategy, I want to show you something really good that we have come up with. So we have come up with this guide for EPFO, APFC, right? We shall soon be coming up with a guide for EPFO, EO exam also. So this guide can answer all your questions. As an aspirant, you will have a lot of questions right now. What does EPFO do, or an APFC do? What is the promotion hierarchy? Then what is the syllabus? What is the pattern? What are the books that I should be using? What are the cutoffs in the past years? What is the salary? You might have n number of doubts, and all of them you will get definitive answers here. All of them, right? Just in this guidebook, which is very colorful, you will see, and it is not very bulky, very much readable within say 1 or 2 hours. You will enjoy reading this, and this can be a good motivation for your preparation for upcoming EPFO, APFC and EO exams. So use this guidebook, and from where you can get this guidebook, go to the description of this video. There is a link. Click on that link and you will get this guidebook for free. तो आज ही यूज कीजिए, बहुत काम आने वाली है आपके. Now coming on to the strategy for accounts, auditing and insurance. So first of all, I just want to discuss the relevance. Many people out there might be thinking कि यार और बहुत सारे subjects हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ठीक है, mental ability hai, English hai, that we will do only those subjects and we can leave accounting and we can still be able to clear this exam. Then I think that is very kind of a misconception on your part. It is not going to be easy to clear this exam without having good preparation accounts. Rather, I would say that a good preparation for accounts would make it super easy for you to crack this exam and get into the final list, because this is something which can give you edge. बाकी सब जगह शायद बहुत कंपटीशन होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, बट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत सारे लोग छोड़ के जाएंगे, एंड दैट इज वेयर यू कैन गेट दैट एज. ठीक है, तो थोड़ा शायद मुश्किल हो सकता है आपके लिए अकाउंटिंग पढ़ना शुरू में, बट इट इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट. There is a lot of time left for the exam. If you can devote a reasonable amount to accounts, I am sure that you are going to score good marks here. तो relevance इसका अगर आप देखेंगे तो number of questions APFC में 2012 और 15 में there was 1 or 3 questions respectively, which seems to be very less, but last exam was held in 2015 way back. उसके बाद EPFO ने APFC तो नहीं लेकिन EO एग्ज़ाम करवाया है, जिसमें 2017 और 2021 में 16 और 12 क्वेश्चंस आए हैं रिस्पेक्टिवली. सो आई थिंक दैट वेटेज काफ़ी अच्छा होने वाला है इस बार. EO में तो डेटा दिखा रहा है कि अच्छा ही होने वाला है. APFC में द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैव बीन लेस फ्रॉम दिस पोर्शन, बट आई थिंक नाउ इट इज़ 2023 एंड नॉट 2015. तो यहाँ पे APFC एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, तो ये आप रेलेवेंस इसका हाई लेके चलिए. स्पेशली आई टोल्ड यू दिस कैन बी समथिंग विच कैन हेल्प यू डिफरेंशिएट योर क्लास इन द एग्जाम. बाकी एक चीज़ मैं और यहाँ पे बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि अगर हम APFC की बात करें, इन APFC you have 3 components: accounts, auditing and insurance, but in EPFO, EO you only have 1 component, that is accounts. और ये मैं पास्ट ईयर सिलेबस के बेस पे बोल रहा हूँ. राइट नाउ फॉर दिस ईयर एग्जाम्स द सिलेबस इज नॉट आउट येट, बट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर सिलेबस वी कैन क्लियरली डिसिफर दिस के EO में सिर्फ अकाउंट्स आता है, इंश्योरेंस और ऑडिटिंग नहीं आता है. APFC में अकाउंट्स, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस तीनों आता है. ओवरऑल आई एक्सपेक्ट, राइट नाउ दिस इज अ गेस, यू कैन से इट एज अ कैलकुलेटेड गेस और अ वाइल्ड गेस, के इस साल क्वेश्चंस 10 से 12 आ सकते हैं आपके एग्जाम में, चाहे APFC हो चाहे EO हो. और उसमें भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अगर APFC की बात करूं तो अकाउंट्स ही रहने वाला है, जिसमें से आई थिंक के 12 में से 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, और थोड़े थोड़े क्वेश्चन इंश्योरेंस और ऑडिटिंग से आ सकते हैं, एक एक दो.
और अगर EOAO की बात करूं तो ये 10 से 12 क्वेश्चंस, ऑल ऑफ देम वुड बी फ्रॉम द अकाउंट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये क्लियर है अभी आपको कि इसका रेलेवेंस हाई है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 12 15 तक आ सकते हैं, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। तो अब इसको करना कैसे है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन ऑडिटिंग एंड देन इंश्योरेंस। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स दैट वन इज रिक्वायर्ड टू स्टडी एज पार्ट ऑफ एनी प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर एनी एग्जाम। ये कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, सिलेबस आपका डिफाइन नहीं है कि टॉपिक्स दिए हो तो हमें ये टॉपिक्स करने रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 18 चैप्टर्स आपको करने हैं, विच सीम्स टू बी अ वेरी बिग डील। तो क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा सकता है? तो मेरे हिसाब से इवन इफ़ यू डू द फर्स्ट 6 चैप्टर्स, बेसिक अकाउंटिंग है, इजी है फर्स्ट 6 चैप्टर्स, बट यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप EOAO का लास्ट एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस फर्स्ट 6 चैप्टर्स में से ही आए थे। उसके बाद अगर और टाइम बचता है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर द लास्ट 4 चैप्टर्स हियर, preparation of final company accounts, income statement and balance sheet, ratio analysis and cash flow statement। बीच वाले चैप्टर ये वाले 7 से 13 ये आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, राइट। बट आई वुड सजेस्ट दैट टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट प्रिपरेशन आप इसको भी कर लें, बट आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट एज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो 15 16 17 18 ये 4 और ऊपर वाले 6 ये आप कर लीजिए। एंड डोंट वरी, इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन फाइनेंस नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, दिस इज डूएबल। अकाउंट्स को ऐसा नहीं है कि आपको कोई न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है, समझ नहीं आएगी। स्टार्ट रीडिंग दिस, थोड़ा सा इनिशियली पेशेंस टेस्ट होगा, बट यू विल बी एबल टू हैंडल इट। ठीक है, तो ऐसे हमें अकाउंट्स पढ़ना है। और अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक आए हैं। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं आपके APFC और EOAO एग्जाम के। Which one of the following is the first book in which the transactions of business unit are recorded? तो ये आपका recording transactions वाला जो चैप्टर है यहाँ से पूछा गया है। When are current liabilities payable? ये आपका introduction to accounting में जहाँ हम liabilities और assets की बात करते हैं। ये ट्रायल बैलेंस पे क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है, तो वो इस चैप्टर से आया है। तो ये जो पहले 6 चैप्टर हैं इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। I'm just giving you some samples और क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। और जो नीचे वाले चैप्टर्स हैं ये तो आपने करने ही करने हैं। वैसे बीच वाले चैप्टर्स से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो मैंने 2 आपको बोला है दैट यू कैन लीव इट, बट अगेन आई वुड सजेस्ट दैट नो ओनली इफ यू आर रियली शॉर्ट ऑन टाइम और आर स्ट्रगलिंग विद अकाउंटिंग, देन ओनली लीव इट। जैसे ये क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग से आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इन्वेंट्री। ये आपका डेप्रिसिएशन से है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फाइनल फॉर्मेट होता है, फाइनल कंपनी अकाउंट्स, उससे आया है, ठीक है। तो ओवरऑल सारे ही चैप्टर्स वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बट आई रिपीट, पहले 6 और आखिरी 4 इफ यू कैन डू इट, यू कैन स्टिल स्कोर वेरी गुड मार्क्स विद द मिनिमम एफर्ट है। द आइडिया इज कि टाइम है तो पूरा पढ़ लीजिए, टाइम कम है, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारा सिलेबस है, तो इनको कर लीजिए। एंड यू बीइंग फ्रॉम अ नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं, कोई बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ने हैं आपने। और सोर्सेज अकाउंट्स के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं? देखिए, बेस्ट जो मैंने पहले 6 चैप्टर्स बोले हैं उसके लिए बेस्ट किताब है 11th और 12th की NCERT, ठीक है। आप उसमें से इन चैप्टर्स को ढूंढ लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़िए। और इनफैक्ट जो आपके नीचे वाले 4 हैं, ये वाले भी आपको 11th और 12th NCERT से मिल जाएंगे। जो ये वाले एडवांस टॉपिक्स हैं 7 to जो 13 है, दीज एडवांस टॉपिक्स ये आपको NCERT में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर ये मटेरियल आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा, इस वेबसाइट पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। बट फर्स्ट ट्राई टू कंप्लीट दिस द टॉपिक्स, फर्स्ट 6 and the last 4. So that was about accounting. Now if I come to insurance, insurance is a very small component and my guess is that कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई 5-6 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1 2 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं, अकाउंट से ज़्यादा आएंगे। और इंश्योरेंस में ऑल यू नीड टू डू इज रीड बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, IRDA एंड इट्स रोल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में यू बेसिकली स्टडी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड ऑल दैट। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक यू कैन कवर ऑल दैट विद इन 1 or 1.5 day। और क्वेश्चंस यहाँ पे भी बहुत बेसिक आए हैं एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल बैंक का इंश्योरेंस इज व्हाट, वेरी कॉमन टर्म यूज्ड इन द बैंकिंग सेक्टर, राइट। तो आई थिंक इतना अगर पढ़ लेंगे आप, ये जो मैंने एरियाज दिए हैं, इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट।
और इंश्योरेंस के लिए बेस्ट है कि आप IRDA की वेबसाइट पे जाएं। IRDA रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस एंड हैंडबुक ऑन इंश्योरेंस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ें। ठीक है। ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है वैसे, बट इफ़ यू सी द पास्ट ईयर पेपर्स, APFC के कभी भी ऑडिटिंग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बट अगेन इट वाज इन 2015, 2023 में देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ऑडिटिंग एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टडी। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट्स, दैट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, वाउचिंग क्या होती है, कंपनी ऑडिटर क्या है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट या उनके रोल्स या फंक्शंस क्या हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होता है, व्हाट आर दे एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू, एंड डिफरेंट ऑडिट्स क्या है। तो ये सारे चैप्टर हैं, ये आपको पढ़ने चाहिए। इसमें भी आई डोंट थिंक दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड मच ऑफ द टाइम, ये ज़्यादा थ्योरी है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं करना है, तो प्लीज़ डू दिस। ठीक है। बट ज़्यादा टाइम, आई रिपीट, मैं फिर बता रहा हूँ, अकाउंटिंग में लगाओ, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस को थोड़ा कम टाइम दो अगर आपके पास ओवरऑल टाइम कम है। और ऑडिटिंग के लिए ये बेस्ट बुक है TR शर्मा की। ठीक है। आप इसको पढ़ें अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ गुड बुक। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग, दैट हाउ कैन यू कवर इट। ठीक है। और जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड गाइस। ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है अकाउंटिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, कोई भी ऐसा डाउट है कि इसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यू कैन email us at hello@edutab.co.in, or you can call us at this number. We would be happy to help you out. We're always there to serve you. That's it. That is what EduTab stands for. Have a nice day. Bye bye. Thank you.